Well, as far as my experience is concerned, I think NEET has a vast subject. उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी इतना सिलेबस वास्ट हो जाता है. अगर हम 11th और 12th में खाली सोचते हैं तो टाइम थोड़ा कम बच जाता है, स्पेशली प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपको बोर्ड भी हैंडल करने होते हैं, स्कूल भी है, प्रैक्टिकल्स भी है, बहुत कुछ है. इफ यू आर हैविंग द आइडिया ऑफ इट फ्रॉम क्लास 8th, 9th और 10th, स्पेशली फ्रॉम क्लास 9, तो इजी हो जाता है. बिकॉज अगर आपका 9th का सिलेबस हम देखेंगे तो वो 11th में एज इट इज रिपीट होता है और 10th का सिलेबस जो है वो 12th में रिपीट होता है. I feel 9th and 10th is the basic, like your basic foundation is what makes the 9th and 10th, right? So if we start from 9th and 10th, the students are not aware about the competition level at 9th and 10th level. So I feel if we start giving them that idea, that will be better for them. Foundation to clear ho gayi. Plus they will have an idea and practice how to go about it. The strategies required in the exam. Yeah, actually it's absolutely true. The thing is, if you're comparing the syllabus of ICSE and we're comparing the syllabus of CBSE, so CBSE ka syllabus is, it's not so vast in class 9th and 10th. Right. If the basics, they are absolutely true in class and they are, thorough in their minds in class 9 and 10, they get a lot of time in 11th and 12th to improvise on what they have already done in their 9th and 10th. Hey students, myself Dr. Anmol Sharma, and I am the trainee doctor, and I am the top educator at the Unacademy, also teaching the anatomy on the top medical colleges of the India. So on the behalf of the Dr. Days, I welcome you on the Unacademy Bridge YouTube channel. So basically अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये डॉक्टर डी स्पेशल वीडियो क्या है. So मैं आप लोगों को जनरलाइज वे में ये बताना चाहूंगा कि बीइंग अ डॉक्टर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के प्रिपरेशन के दौरान जो आपके मन में आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने आपके जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज के टॉप एडुकेटर्स हैं, जैसे कि रवि सर हु इज टीचिंग द फिजिक्स, शाली मैम टीचिंग द केमिस्ट्री, एंड डॉक्टर अनुष्का मैम हु इज टीचिंग द बायोलॉजी, इनसे हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो कि आपके मन में अक्सर आते हैं, चाहे वो आपके साइकोलॉजिकल माइंड से हो, चाहे वो आपके फिजिकल माइंड से हो, चाहे कि आपको पढ़ना कैसे और प्रोसीड कैसे करना है. ये 4 साल की लंबी जर्नी आप कैसे आप इसको मतलब रन स्मूथ लेकर जा सकेंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम हमारे टॉप एजुकेटर से पूछेंगे और उनके आंसर्स को हम लोग अपने लाइफ में इनकलकेट करके आगे बढ़ना है. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हमारे इस ऑसम सेशन को हम बिगिन करेंगे. और सबसे पहला आप ये जान लीजिए कि आपके एडुकेटर्स कौन है. सो आइए, हमारे सबसे पहले एडुकेटर है रवि सर. Hello students, myself Ravi Ahlawat, and I have been training students for NEET and IIT category. Here I'm training you for NTSC and foundation because that's the key. If your foundation is weak, then nothing is strong basically. So I have been awarded by 12 chief ministers so far. I have been India record holder, and I have been training in 16 states of India and outside India almost in 21 countries. So I'm hoping for a great session today. Thank you, sir. Thank you. So we'll have the Dr. Anushka ma'am. Hello, my dear students. I'm Dr. Anushka Sinha, and I'm a doctor by profession. I teach biology because it's my passion. Now, coming to the subject of biology, I understand it's a boring subject to many, but this is where I come into the picture and I try to make it interesting, fun learning, and in a way where you will retain for a longer time. Now, I hope the session will be very much interesting and fun learning experience with you. Let's see you in the class. Thank you, ma'am. So we are having the Shali ma'am. Hey guys, so this is Sherry Kaushal from Unacademy, and I teach chemistry on the Unacademy Plus platform and also taking special classes. I am a teacher by profession, teacher by heart, and I'm going to make chemistry very, very fun living. I will not say that it's boring. It's a very, very interesting subject, and I'm sure you will fall in love with it, my subject. So please come and look at the lectures and have a great time with chemistry. Build up a chemistry with chemistry. Thank you, ma'am. So guys, we are starting this awesome session with the awesome questions to our panels. So being a doctor is a very important thing. Like अक्सर देखते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि हम सभी को डॉक्टर बनना है. एक एंट्रेंस एग्जाम जो होता है नीट का, उस NEET में कम से कम 18 से 20 लाख बच्चे बैठते हैं और सभी ने MBBS ही करना है. और आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्लास 8 और 9 से तैयारी चालू कर देते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 8th और 9th से,
सो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, सबसे मेजर चीज, क्योंकि अगर हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते तो सिलेबस इज मस्ट नोन। सो मेरा ये पूरे पैनल से जितने भी हमारे पास एडुकेटर्स हैं पैनल्स के, ओके, दे आर टीचिंग फॉर द फाउंडेशन कोर्सेज। सो मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप सभी से, अब आप में से एक एक करके आप लोग बताइएगा कि सर एंड मैम, हाउ टू नो द सिलेबस, हम पैटर्न को कैसे समझे। जैसा कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो क्लास 11th में प्रिपरेशन को बिगिन करते हैं, तो क्लास 8, 9th और 10th में वो सिलेबस पैटर्न को कैसे समझ के ओके नीट की प्रिपरेशन को बिगिन करें। सो रवि सर। जी, थैंक यू सर। So the thing is that I'm from Mumbai and अगर हम देखें तो 720 नंबर में से 600 नंबर आपको मिनिमम चाहिए होते हैं मुंबई के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। उसमें आप आते हैं टोटल 1% ऑफ द टॉप स्टूडेंट, मींस 99% स्टूडेंट को आपको पीछे छोड़ना है। और उसमें जो है उस लेवल की प्रिपरेशन के लिए 2 साल काफी कम पड़ जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो जो 9th का सिलेबस आपका है वो 11th में रिपीट होता है और 10th का सिलेबस 12th में रिपीट होता है। और अगर सिलेबस की कंटेंट हम देखें तो जहां तक मैं बता सकता हूँ 9th और 10th का जो सिलेबस है वो इतना कम है कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, और 11th और 12th का सब्जेक्ट का कंटेंट इतना है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। ऊपर से ये है कि आपके बोर्ड के मार्क्स भी मैटर करते हैं, बिकॉज वो आपके साथ उम्र भर रहेंगे, या आपके टीचर्स भी बताते हैं और पेरेंट्स भी बताते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि बोर्ड्स जो मैनेज करना पड़ता है तो लास्ट के 2-3 महीने तो आप छोड़ ही दीजिए, बिकॉज यू हैव योर वाइवा, यू हैव योर प्रैक्टिकल्स, यू हैव एवरीथिंग। तो आपको के पास कोई टाइम ही नहीं बचता है, जिसमें एक बड़ा गैप आ जाने की वजह से अक्सर कमी पड़ जाती है। और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं, मींस आई टेल यू कि मेरे काफी स्टूडेंट जो 96%, 97% बोर्ड में लेके आए थे, दे हैड टू टेक ए ड्रॉप बिकॉज दैट वाज नॉट सफिशिएंट, दे कुड नॉट बी द टॉप 1%। और उसके लिए अब एक समाधान यही है कि 9th क्लास से अगर हम प्रिपेयर करते हैं या 8th क्लास से अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हम इजीली उसको, हमारे पास 2 साल की बजाय 4 साल का टाइम मिल जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अच्छा, सो डॉक्टर अनुष्का मैम, आपको क्या लगता है कि कैसे, मतलब सिलेबस पैटर्न, जैसे कि सर ने बड़ा अच्छे से बताया कि कुछ परसेंट बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है, तो आपको क्या लगता है कि सिलेबस इंपॉर्टेंट है समझना कि हमें सब कंटेंट ही मगअप करना और कंटिन्यू करना, आपको क्या लगता है डॉक्टर अनुष्का मैम? तो आई डोंट थिंक कंटेंट मगअप करने से कुछ होता है। द बेसिक थिंग इज फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे समझ के भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू एंड अप मगिंग स्टफ। तो दैट इज वेयर अगर हम 9th में ही चालू करते हैं तो सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन क्लियर होगा। तो उससे क्या आएगा, देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग अप अ हायर लेवल, राइट? So as soon as we start building a higher level in a continuous, systematic way, then the child will feel comfortable with what we are teaching. The second thing is they will understand the levels of competition that is there. Thirdly, they will get an idea how the exam is. उन्हें जो 12th के बाद जो नीट देना हुआ है कोई भी एग्जाम, उसके लिए आइडिया लगेगा कि कैसे है, क्योंकि आधे बच्चे क्लूलेस की एग्जाम ऐसे होता है, they do not know how to manage time, they do not know which topic to do first. I think understanding the syllabus and how to go about it in a systematic way is important rather than mugging up. Mugging up never helps, not now, not ever. Neither in MBBS also. I think even you know that. Mug up करके कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। सो मैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बच्चों ये बता दिया कि हमने ये समझ जाना है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कंटेंट को समझना इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैम कहना चाहते हैं कि लाइक आपको अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सो शैली मैम, माय क्वेश्चन इज लाइक, ओके, आज के जो जनरेशन में जो बच्चे होते हैं वो प्रिपरेशन जो होते हैं वो क्लास 8 से तो चालू कर रहे हैं, लेकिन वो 8, 9, 10 तो 11, 12 ये जर्नी 4 साल की बड़ी होती है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है। तो उसमें पीयर प्रेशर्स भी होते हैं और लाइक बच्चे डेवलप भी कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चे डिमोटिवेट होकर कहने लगते हैं कि अब तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो अब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या लगता है कि जब बोर्ड्स के प्रेशर्स होते हैं, जो बच्चे क्लास 10th में है और वो फाउंडेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो फाउंडेशन को और बोर्ड्स के प्रेशर को कैसे मैनेज करके वो मतलब अपने फाउंडेशन के कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं? ओके अनमोल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट्स क्लास 9 से या क्लास 8 से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस 8, 9, 10th का इतना ज्यादा वास्ट नहीं है। सो स्टूडेंट्स दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज जनरली व्हाट आई हैव सीन इज कि 11th और 12th में वो वही लैक कर रहे हैं। So if the parents, they are listening to this conversation, I would like to explain them
कि जैसे हम लोग बच्चे की बिगनिंग, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, हम एक सिप कर लेते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट क्या है? दे आर नीट एस्पिरेंट्स, उन लोगों को नीट क्रैक करना है, तो उनका मेन फोकस क्या है कि उनको नीट क्रैक करना है, एंड द इन्वेस्टमेंट इज देयर टाइम, राइट? वो टाइम पेरेंट्स का भी होना चाहिए, वो टाइम जो है स्टूडेंट्स का भी होना चाहिए। सिस्टमैटिकली, एज डॉक्टर अनुष्का सेड, वेरी वेल सेड, कि सिस्टमैटिक प्लान हैज टू बी रियली रियली इम्पोर्टेंट। तो एक सिप की तरह ही प्लान कीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 8। अगर फोकस ही बच्चे का है कि डॉक्टर ही बनना है उसको, तो दे शुड गो इन दैट प्रोसेस सिस्टमैटिकली। दे शुड 5 years में सिलेबस उनका जितना भी है उसको कैटेगराइज कर ले कि फिजिक्स में उनको इन 3 years में इतना करना है, और उसके बाद 11th और 12th में प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाता है कि बच्चे जो है वो अपनी स्टडी से डिपार्ट होने लग जाते हैं। That is because they are not understanding stuff. They are not enjoying their studies. तो अगर वो enjoy नहीं करेंगे तो definitely they will not succeed in their motive. Enjoy करने के लिए 8th, 9th और 10th की जितनी भी पढ़ाई है, that should be really really important. And I've seen Unacademy पे जब हम लोग classes लेते हैं, plus की classes लेते हैं 9th और 10th की, the students who are actually taking their classes with a lot of sincerity, they're enjoying it. If they're enjoying it, वो multiple choice questions के लिए वो और आगे आते हैं कि और questions चाहिए, और questions चाहिए. I've seen even Vindhya and even Dr. Anushka's class, I keep barging into the classes. So I've seen कि students are asking they're so greedy about questions because they're enjoying the matter. So that is most important. वो inculcate करना foundation में सबसे ज़्यादा important है. तो जैसे आप नर्सरी केजी में ABC राइम से पढ़ा रहे हो और बच्चा स्टडीज एंजॉय कर रहा है, वैसे ही 8th, 9th, 10th में अगर वो 11th और 12th का इवन 50% सिलेबस कर लेता है, तो 11th और 12th इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर देम. तो नीट तो फिर क्या बात है, दे विल बी एबल टू डू इट. सो रवि सर, आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सवाल है. अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो क्लास 8th और 9th में या 10th में वो अपने पेरेंट्स को मतलब प्रेशर करने लगता है कि नहीं यार, अगे हमें पापा, हमें मम्मी, हमें तो कोचिंग क्लास ही जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो कोचिंग क्लास इज मस्ट नेसेसरी. सो आपका इसमें क्या राय है? जैसे कि आपको मैं अगर अपना बताता हूँ कि आज हम मेडिसिन कर रहे हैं और हमने मतलब मैंने तो कभी कोचिंग नहीं किया है, मैंने सेल्फ स्टडी के दम पे हमने नीट को क्रैक किया है. सो आपका क्या मानना है कि कोचिंग जो है क्या वो जरूरी है नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए, कि आप ऑनलाइन मटेरियल्स को यूज करके आप नीट क्रैक कर सकते हैं? आपका क्या मानना है इसमें? The thing is that मैं भी हरियाणा के एकदम छोटे से गांव से हूँ और आई वाज AIEEE रैंक 2. मैं अपनी स्टेट रैंक होल्डर हूँ, स्टेट रैंक 2 क्या बात है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में. आई एम पास्ड आउट फ्रॉम PSC कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज एशियाज रैंक 2 कॉलेज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोचिंग इंडस्ट्री उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है. कोचिंग बहुत मायने रखती है उसके लिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेट नहीं है. चाहे आप बेस्ट टू बेस्ट टीचर के पास, बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बट अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, सेकंड थिंग, अगर आपकी फाउंडेशन क्लियर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा. और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए और स्टूडेंट को भी ये समझना चाहिए कि अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप कर पाएंगे. टीचर्स होते हैं, वो जादूगर तो होते नहीं है कि वो एकदम छड़ी घुमाएंगे और आपकी नीट क्लियर करवा देंगे. ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इट एंड इफ यू आर हंग्री अबाउट इट, you will be able to get it. So that is the most important thing I must say. Coaching institute आपको हेल्प कर सकते हैं. मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट की एक सक्सेस जर्नी में टीचर का रोल 5% होता है और 95% होता है स्टूडेंट. टीचर प्रोबेबली आपको गाइड कर सकते हैं, मे बी बूस्ट कर सकते हैं, मे बी आपको 80% से 90% तक पहुंचा सकते हैं. ये नहीं हो सकता कि आपको 25% से उठा के 95% तक पहुंचा देंगे. एग्जैक्टली. सो डॉक्टर अनुष्का मैम, मेरा एक बहुत ही मतलब कॉमन सा एक सवाल होता है कि अगर आप कंटेंट पढ़ ले रहे हैं, जैसे कि आपने बड़ी अच्छे से बताया कि कंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ फाउंडेशन और फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम. सो कंटेंट के बाद आप प्रैक्टिस को किस प्रायोरिटी में रखेंगे? कहते हैं ना कि मतलब सारे बच्चे NCERT पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम के लिए, सारे बच्चे बोर्ड्स के लिए पढ़कर जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे जो हैं वो टॉप मार्क्स आ जाते हैं और उनके इंटरव्यू में वो अक्सर कहते हैं कि वह प्रैक्टिस अ लॉट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रैक्टिस अ लॉट? का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस और कंटेंट
मतलब जो आप पढ़ रहे हो और वो प्रैक्टिस, उसका कितना वैल्यू आपके प्रिपरेशन में होता है? बेसिकली जो आप प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू, उससे आपको आइडिया लगता है क्वेश्चन सेट क्या होगा. ऑफ कोर्स जो हमने पढ़ा रहता है इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली वैसे आएंगे एग्जाम में, वैसे right? है। Like if you start with a chapter, any chapter, you will start with the basics. Then you will get the higher level up. धीरे धीरे आप अपना level बढ़ाएंगे. Only once you're clear with the foundation and you're very much thorough with the theory कि मुझे समझ आ रहा है क्या chapter इस chapter में क्या है, कैसे करना है, only then you can solve. Because ऐसी book खोल के अगर तुम practice करने लग जाएंगे अगर बच्चे, तो it will make no sense because they are not understanding. At the end, what will it lead to? Again mugging up. So that process has to be stopped, right? So Yes. first, completing the whole theory in a manner where you understand and then practicing is the way to go about it. So it does not matter if you solve 100 MCQs even when your basics are not clear, because everything will be mugged up at the end. I think Okay, thank this you, is ma'am. what I feel everybody of us has experienced at some Yes, or the other exactly. time during our exams also कि यार ये तो mug up हो गया था. तो शैली मैम, मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं भी ये सोच रहा था और बहुत से बच्चे हैं ना, वो अक्सर मतलब वो सवाल वो हमको भी मतलब पूछते हैं कि जब आप कोई भी मतलब लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, उसके लिए मैं क्लास 8 से मैंने डॉक्टर की प्रिपरेशन चालू कर दी. सो आपका क्या मानना है कि लाइक एक जो पेरेंट्स होता है, अभी ये वीडियो जो बहुत से पेरेंट्स देख रहे हैं, सो पेरेंट्स शुड लाइक अपने बच्चों को ये प्रेशर करना चाहिए कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईआईटी देना है. सो इस वे में आपका मतलब क्या पर्सपेक्टिव है? जैसे कि बच्चा है जिसका इंटरेस्ट जो है अगर वो आईआईटी में है और लाइक कह रहे कि हमारे घर में खानदान में कोई डॉक्टर नहीं बना है, और होता है ना कि लाइक कि नहीं आपको तो डॉक्टर बनना है, तो कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइक उनको अपने पाथ को डिसाइड नहीं कर पाते. तो पेरेंट्स के लिए आप क्या एक मतलब संदेश देना चाहेंगे, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? पेरेंट्स को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए. एग्जैक्टली. एज आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर एक चाइल्ड एंजॉय नहीं कर रहा तो अगर वो कोटा फैक्ट्री भी चला जाएगा और वहां पे वो बेस्ट ऑफ, एज रवि सर वो सेइंग, बेस्ट ऑफ टीचर से भी पढ़ लेगा, पर वो घर पे आके इंटरेस्ट के साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है, रीडिंग नहीं कर रहा है, उसको रिमेम्बर नहीं कर रहा है, रिटेन नहीं कर रहा है, तो द final effect is going to be zero. Now things have changed. A child will only do, children are very smart. He will study, he's studying, he's in his room, he may be doing 110 more things, but he's not studying. पर अगर वो चीज enjoy कर रहा है तो वो 100 लोगों के बीच में बैठ के भी उस चीज को पढ़ सकता है, कर सकता है, enjoy कर सकता है. So that's a very bad notion and it's absolutely wrong. अगर पेरेंट्स सोच रहे हैं कि भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही बनना है, दैट शुड कम विद इन द चाइल्ड. अगर बच्चा खुद सोचेगा तो वो बिना पेरेंट्स के बोले भी आराम से कर लेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेशन में ही आई थिंक इंटरेस्ट, पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स भी बहुत फ्रेंडली है. आई बीइंग अ पेरेंट टू माय डॉटर्स, आई एम वेरी फ्रेंडली टू देम. सो दे डिस्कस विद द पेरेंट्स, और पेरेंट्स को भी वो टाइम निकालना चाहिए कि वो उनके इंटरेस्ट को पहचान सके कि क्लास 8 क्लास 9 से उनका क्या इंटरेस्ट बन रहा है, एंड उसी तरफ को पुश करें उसको. दैट इज व्हाट आई फील, उसी तरफ को पुश करना चाहिए. यस. सो बहुत ही अच्छे मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ये समझा दिया कि लाइक मतलब पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सभी से यही मैसेज कहना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर डॉक्टर अनुष्का मैम भी इसके बारे में जानती रहेगी. जब साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना इस चीज को कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है और वो कह रहा है कि नहीं हमसे नहीं हो सकता ये चीज, और तो भी हम प्रेशर करवा रहे हैं कि नहीं तुमको करना है, तो कोई भी दुनिया का मेडिसिन काम नहीं करेगा उसके ऊपर. तो ये बात तो मैं इससे एग्री करता हूँ डेफिनेटली. रवि सर, मैं आपसे एक बहुत ही सुंदर सवाल पूछना चाहूंगा. जैसे कि आपने बताया कि यू आर द रैंक होल्डर AIEEE ओके रैंक 2. सर आपके हिसाब से मतलब जो जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि रैंक इंपॉर्टेंट है कि हमारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब बच्चा एक प्रिपरेशन कर रहा है तो वो कहता है ना कि लाइक मुझे तो एम्स ही चाहिए, वो क्लास 8 से कहेगा कि मुझे एम्स चाहिए, एम्स के अलावा कुछ नहीं चाहिए. सो आपके हिसाब से क्या लगता है, भाई रैंक इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है? I must tell you, rank important. Rank is important. Especially if I talk about मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, अगर मैं मेडिसिन के बारे में बात करूं
रैंक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आपकी सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आप किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो जितनी अच्छी रैंक होगी आप उतने अच्छे कॉलेज में होंगे. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट. और आपकी सराउंडिंग, आपका फ्रेंड सर्कल, इफ यू विल सी that basically makes you a real that's the real learning from your college. और मुझे ये लगता है कि रैंक डेफिनेटली मैटर करता है. खाली सिलेक्शन तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं. मान लीजिए किसी भी एरे गहरे नथु खैरे कॉलेज से कर लिया आपने तो that will not help. Let me tell you an example of I'll not name the college, but one of my colleague he was suffering from some problem. तो हम उसको लेके गए एक मेडिकल कॉलेज which is very near to me. Will you believe that the doctor, he put the syringe needle in the artery or veins जो भी है, and उसका साथी उसको बोलता है कि नहीं ये आपने शायद गलत लगा दिया. बोला नहीं, मैंने YouTube पे देखा था, ऐसे ही लगा दिया. Now this is where only selection and the rank matters. तो अब सर आपने तो it will not help. नहीं हम इससे एग्री करते हैं सर, इससे डेफिनेटली एग्री करता हूँ मैं तो. तो सर ने मतलब अब तो ये फाउंडेशन का चल रहा था तो मैंने बीच में ये सवाल पूछने का ये एक मेरा मेन मोटिव ये था कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो अक्सर कहते हैं ना कि लाइक जब वो फाउंडेशन से जब प्रिपरेशन करते हैं तो माइंड में एक पिक्चर क्लियर होता है कि मुझे एम्स अगर जाना है तो मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की होगी, या तो मुझे कोई भी एक मेडिकल कॉलेज मेरे अगल बगल का मिल जाए वो मतलब मिल जाए. तो सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई कि रैंक इज इम्पोर्टेंट, मस्ट इम्पोर्टेंट. आपको पता होगा कि हमारे बहुत से एडुकेटर जो टॉप रैंकर्स हैं, एम्स में है, अगेन एमएमसी में है, वहाँ के एलुमनाई भी है. तो एक रैंक का भी एक इंपॉर्टेंट वेटेज पड़ता है. थैंक यू सर. डॉक्टर अनुष्का मैम, बीइंग अ डॉक्टर, जब डॉक्टर से एक बात करेंगे तो मैं एक ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब अक्सर जो बच्चे जो होते हैं क्लास 9th 10th 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो कभी ऐसा समय आता है कि लाइक वो फेड अप हो जाते हैं. मैंने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा या मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, अब मैं भूल गया लिविंग वर्ल्ड. सो वो भूलने वाली जो बीमारी होती है बच्चों की, कहते हैं ना कि बायोलॉजी जो रहता है उसको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मेरे माइंड में फिट होना चाहिए. वो भूलने वाली बीमारी से कैसे ओवरकम करें? ऐसे बहुत से बच्चे इसमें टेंशन में रहते हैं. I think that happens every time, not only with biology, I think with physics and chemistry also. So that is where revision and your notes come in handy. Basically, they are mnemonics. You can study with different learning methods जिससे आप याद कर सके, उनको बार बार रिवाइज कर सके. You should be making notes की या 5 मिनट टाइम बचा तो उनको 5 मिनट में भी पढ़ लूं तो ये चैप्टर हो जाएगा. You should be making small colorful post जिससे आपको इंटरेस्ट लगे. मतलब black and white is very very boring, to be honest. Once you do it in a colorful, different manner, that is where you will keep on revising. And you can make a timetable where अच्छा चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1 महीने बाद मुझे यही चैप्टर 1 दिन में रिवाइज करना है. मतलब जितने भी like 5 chapters हो जो भी. But then that time when you revise those 5 chapters, it should not take the whole day. It should just be like चलो 1 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए. And revision, and that revision should be very small, short and sweet. बोलते हैं ना study smart. So that is where revision comes very much in play, and that is how much important it is to study smart. Yes. And so hard work. हमने बहुत ही अच्छे से बताया कि लाइक स्टडी स्मार्ट और रिवीजन. और अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करें, जरूरी नहीं है कि आप नीट के लिए, आईआईटी के लिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो तो रिवीजन इज मस्ट. तो शैली मैम से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा. मैम एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत जगह पढ़ाया होगा, तो मैम आपको क्या लगता है एक टेक्नोलॉजी का, जैसे अनअकैडमी इज अ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, एक टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में अगर हम लोग एक अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, सो क्या वो हमारे मिशन तक हम लोग को पहुंचा सकता है? जैसे कि एक सवाल आता है ना कि कुछ मतलब एलिमिनाई होते हैं तो कुछ टॉपर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमने यूट्यूब से सिलेक्शन हो गया हमारा, हम इधर इधर आज पढ़ रहे हैं. सो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में मतलब क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है टेक्नोलॉजी का एक एजुकेशन में? Well, पहले तो I'll like to add on to Dr. Anushka's this thing जो आपने पहले उनसे question पूछा था. In our terminology हमारे पास होते हैं 3 R's. R means R, not A-R-E, the R alphabet. So हमारे पास होते हैं 3 R's. One is read, the second one is remember, and the third one is retain. Right? So read is your first step. Progressive steps ये रहते हैं, तो read is the first step. Second is that you have to learn it. Or retaining, that comes into applicability in the form of questions.
सो ये मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को जब भी मैं कोई भी एक नया कोर्स स्टार्ट करती हूँ, तो दैट इज यू नो हाउ आई बिगिन, कि इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए. ऑलवेज कीप द 3 hours इन योर माइंड. नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये जो टेक्नोलॉजी आई है, इससे सबसे बड़ी चीज जो हुई है दैट इज सेविंग ऑफ टाइम. एग्जैक्टली. कम जो इनको बच्चों को पहले स्कूल जाते हैं, मैंने अपने बच्चों को भी देखा है, जो मेरे पास पढ़ने आते थे उनको भी देखा है. स्कूल जाएंगे, उनका 9 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल है, फिर उसके बाद स्कूल से वो कहीं रास्ते में ही लंच पैक करके दिया हुआ है, मदर्स ने खा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भाग रहे हैं, और वहां पे जाके आधे पढ़ रहे हैं, आधे सो रहे हैं, फिर उसके बाद वो लोग वापस आ रहे हैं. दे आर सो मच फटीग्ड कि उनके पास सेल्फ स्टडी के लिए, आज रवि सर वाज सेइंग, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही कहाँ है. अब ये टेक्नोलॉजी से वो कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहे हैं, ट्रेन में है, उनकी क्लास चल रही है, तो वो इतने सेल्फ मोटिवेटेड है स्टूडेंट्स, जिन्होंने करना है, अपना क्रैक करना है, नीट करना है, आईआईटी करना है, यूपीएससी करना है. मैंने दिल्ली में मेट्रोज में जब मैं ट्रैवल करती हूँ, तो मैंने वहां पे देखा है कि स्टूडेंट्स दे आर ऑलवेज यू नो हाथ में अपनी नोटबुक्स पकड़े हैं और यूट्यूब पे वो लेक्चर्स देख रहे हैं. दे मेकिंग देयर नोट्स, स्क्रिबलिंग एवरीथिंग व्हाट द टीचर इज सेइंग. So this is what technology has done. It's given a great impact on the students. बहुत ज्यादा टाइम सेविंग है, बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी हो गई है. ऑफ कोर्स कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा इससे, क्योंकि हर एक बच्चा जो है that is he is going to study, give his own time, do a lot of questions. जहाँ पे पहले उनको 50 क्वेश्चंस करने का टाइम आप जैसों को मिलता था, जैसे डॉक्टर अनुष्का को या आपको अनमोल, आपने दोनों ने डॉक्टरी की पढ़ाई करी हुई है, तो जहाँ पे आप 50 क्वेश्चंस कर सकते थे, वहां पे स्टूडेंट्स को घर में ट्यूटर्स मिल रहे हैं तो वो 500 क्वेश्चंस कर सकते हैं. So that is going to make a difference. You know where they're going to stand with respect to you. जहाँ पे आपने वो अपने 3 घंटे ट्रैवल में ही वेस्ट कर दिए, फिर वहां जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, the teacher hasn't come, so now what to do? तो वहां से आपको फिर वापस आना है. तो वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो कि टेक्नोलॉजी ने हमें दी है. सेकेंडली, ऑनलाइन क्लास अगर हो रही है, जैसे 2 बजे क्लास ले रहे हैं, या अनुष्का इज टेकिंग क्लास एट 4 o'clock एंड द चाइल्ड इज फीलिंग हंग्री, तो 2 मिनट में मैगी बना के वो खा रहा है, पढ़ रहा है, सब कुछ साथ साथ ही कर रहा है. सो और इससे अच्छा क्या हो सकता है? दिस इज द बेस्ट व्हाट you know technology can give the students, so they should make the best use of it. और अभी तो कोविड में तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं. कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, स्कूल बंद है, तो वी आर वर्किंग. So I think मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया इस चीज को कि टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम कंज्यूम कर रहा है, और टाइम कंज्यूम करने की वजह से क्या हो रहा है कि जो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं था इसके अंदर, उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट को इंकलकेट किया, जनरेट किया, एंड लाइक वो भी इस चीज को भी मतलब कर रहे हैं. मैं इसको बहुत अच्छे से समझ गया, एंड हमने एग्जांपल भी दिया. हमारे समय तो ऐसा था कि लाइक बैठ जाओ तो आपको 50 सवाल हो गया, जाइए ठीक है हो गया, आपको कल इसका रिजल्ट मिल जाएगा. और सो फाइनल मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कहते हैं ना कि टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट या टाइम इज प्रेशियस. सो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कि यही पूछना चाहूंगा कि जो भी बच्चे मतलब जो ये प्रिपेयर कर, जो फाउंडेशन से क्लास 8 से वो नीट के लिए वो एक सपना देख रहे हैं कि हम डॉक्टर बनना है, सो आप मतलब आपका एक फाइनल मैसेज क्या होगा उनके लिए कि कैसे पढ़ना है? जैसे कि आप पर्टिकुलर आप ये भी बताइए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप लोग, और आपका अप्रोच कैसा है उस सब्जेक्ट के लिए, आप लोग प्लीज उसके बारे में बताएंगे. तो पहले हम लोग शैली मैम से बिगिन करते हैं. ओके, तो अब डॉक्टर्स डे, वी हैव 2 doctors on the platform. डॉक्टर्स डे का मैसेज, तो जो भी एस्पायर कर रहे हैं नीट के लिए, उनके लिए बड़ा जरूरी है ये जानना कि साहब वर्ड जो है वो सिर्फ डॉक्टर के साथ लगता है. आपने कभी नहीं सुना होगा इंजीनियर साहब, या आपने कभी नहीं सुना होगा टीचर साहब, एडुकेटर साहब भी कोई नहीं बोलता है. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज द मोस्ट नोबल प्रोफेशन. बड़े से बड़ा आदमी, रिचेस्ट, और कोई भी हायरार्की में भी होगा, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, when he will enter into a cabin of a doctor, he will always say कि डॉक्टर साहब मेरी नब्ज देख लो. So you know it's the most noble profession. So if you're aspiring for that most noble profession, probably you know that has been put into your mind. That's the best blessing God has given you. Make the best use of it.
फोकस करो फाउंडेशन से, अपनी क्लास 8 से फोकस करना शुरू करो, ताकि जब आप 11th 12th में जाएं तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 8th 9th में फोकस नहीं किया था उनको भी हेल्प कर सके कि वो भी फोकस करें। बहुत डॉक्टर्स की जरूरत है हमको, बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत है इंडिया को। सो प्लीज फोकस, स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्टली, मेक योर टाइम टेबल। कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, एज रवि सर इज सेइंग कि 10-10 घंटे की पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। 1 घंटा पर सब्जेक्ट diligently 5 days in a week, Saturday Sunday मौज, but very very consistently you have to progress towards it. So I am taking guys NEET foundation on Unacademy, and I am taking chemistry really from the scratch, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है, जहाँ पे बच्चे को केमिस्ट्री के सी के एक डंडी से भी अगर पढ़ना है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। आपको कोई भी दिमाग में बोझ लेने की जरूरत नहीं है कि कोचिंग नहीं जा पा रहे तो होगा नहीं। कोचिंग जाने से कुछ नहीं होता है, सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत जरूरी है। You have to work hard. We are there to guide you in all your spheres. आप किसी भी एजुकेटर को टेलीग्राम ग्रुप पे कभी भी मैसेज करोगे, कोई भी आप अपना डाउट पूछोगे, I am sure all the educators of Unacademy, they are more than ready to help you. That is why the telegram groups are made. So that is what I am teaching, chemistry, motivating the students to become doctors. So that's all. Thank you, ma'am. So, Ravi sir, आप बताइए। मेरा एज है अभी 30 years and more than 200 students of mine are doctors. I have training n number of students for NEET, and I must tell you सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सब्जेक्ट के साथ IT फिजिक्स क्या होती है कि हवा कि स्टूडेंट्स को लगता है कि सब्जेक्ट ऐसा है और हमने मैथ्स लिया नहीं है, और अगर मैथ्स नहीं लिया तो हमको समझ में आएगा नहीं। तो प्लीज वो आप बिल्कुल ना माने। मेरे लिए भी था सर। When I was in my 11th and 12th, मेरे लिए भी distinction holder in chemistry, distinction holder in bio, and physics just dropped down. So physics is a no-no. Exactly. It's a big हवा। Yeah. So ये हवा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग आपको सिखा देते हैं, आपके क्लासमेट सिखाते हैं, इनफैक्ट few of the teachers does it that physics is a tough subject, physics is a tough subject। ऐसा बिल्कुल नहीं है। I promise you one thing, you attend the class and you will be in love with the subject। और इसके लिए what I am doing is, अगर आप 9th में हैं या 10th में हैं, अगर मैं recent course अगर आप देखेंगे तो in 7th class I am finishing your 9th syllabus। I promise you not even a single doubt और सिंगल कॉन्सेप्ट वुड बी मिसिंग। आपकी पूरी की पूरी 9th क्लास 7 दिन में हो सकती है अगर आप चाहें तो, इररिस्पेक्टिव आप 8th में है, 9th में है या 10th में। अगर आप 10th में भी और 9th वीक थी तो यू कैन फिनिश योर 9th इन 7 days। इसके इमीडिएट बाद जो मेरा कोर्स होगा 7 days and 10th standard। I promise you in 7th class you will be at par with your 10th। And then basically हम चलना सिखा सकते हैं, दौड़ना आपको है। उसके बाद we will be having practice session and definitely we are having mega quiz and weekly quiz, and then we are having MCQ sessions on them। You can attend them। Apart from that मेरे कुछ courses हैं जो मैंने I have taught physics only with the help of mind maps। हर एक कॉन्सेप्ट के लिए, हर एक इनफैक्ट एंटायर चैप्टर, एक पेज के ऊपर आप पूरा चैप्टर कैसे लेके आएंगे उसके लिए मैंने पूरा माइंड मैप बनाया है। मैं आपको माइंड मैप सिखाया, नॉट ओनली फिजिक्स। देखो फिजिक्स कोई भी सिखा सकता है प्रोबेबली, बट ये समझना जरूरी है कि फिजिक्स को सीखना कैसे, द वे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वे ऑफ एक्सेप्टिंग इट। तो मैं ये मानता हूँ, इनफैक्ट मैं स्टूडेंट को होमवर्क भी देता हूँ कि आप पूरे के पूरे चैप्टर को अगर एक पेज पे ला सकते हो और दूसरे को पढ़ा के समझा सकते हो, दैट मींस यू हैव लर्नड इट। तो this is what I have been telling them, and I have produced mind maps for every single concept, and I have been training them। This is we are doing as an educator on Unacademy, and I have been trying my level best that you understand। I am connected with all my students on Telegram, even in fact on WhatsApp। जिसको जो जरूरत है, कई बार तो रात को 1 बजे मैसेज करते हैं, and we try to reply for that। Okay, sir। थैंक यू सर, ऑसम। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, हम भी इसको यूज करेंगे। थैंक यू। तो डॉक्टर अनुष्का मैम, आपको क्या लगता है इसके बारे में? एंड आप मतलब अब बायोलॉजी को आप कैसे, मतलब अपने जो कोर्सेज चल रहे हैं वो आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? तो बेसिकली आई टीच बायोलॉजी। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको लगता है बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मगज की जरूरत है, एंड मतलब क्या है यार, इतना लर्न करना है, बट ऐसा नहीं है। इफ यू आर टॉट प्रॉपरली इन अ सिस्टमैटिक मैनर, तो अगर एक एक टर्म अगर हम अच्छे से समझें तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है लर्न करने का।
मतलब अगर इतना बड़ा पैराग्राफ है, आप उसको समझा ही नहीं पा रहे, मगअप करे तो कोई मतलब नहीं है, वो लगेगा यार 10 घंटे लग जाएंगे, बट वही चीज अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे एंड अच्छे से पढ़ेंगे तो it just happens like in a minute or so, and that is how I teach. Like I start from the basics, because अगर आपका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो नथिंग मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स, भले तुम कितना भी हाई लेवल पढ़ लो. तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, आई इंक्रीज द लेवल अप अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स. ये नहीं कि जो वीक स्टूडेंट्स उनको पीछे छोड़ दें. आई ट्राई टू गो अलॉन्ग विद द क्लास. I try to take special doubt lectures, special MCQ sessions, and even special sessions जिसमें वो मुझे बताते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है. जैसे कोई बोलता है डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ना है, so I try to go in a bit of detail, जितना डिटेल हो सकता है कि चलो आज डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ते हैं ताकि वो इंटरेस्टेड रहे. Yes. Something interesting, something new for them to learn, and I have got a really great response by them. So I start from the basics and then increase the level up in a stepwise manner. That way, the student is very much attentive. He knows what is going on, and he's very much interested in biology, and he understands biology. The main and basic point is he understands what is biology rather than a subject which is supposed to be marked up. So I take NEET classes. NEET Foundation हमारा course है जिसमें I take classes. And then I've also launched classes for NSCJS because उसका भी अलग हवा बना रखा कि NSCJS बहुत हाई लेवल है. तो उसके लिए भी अलग से क्लासेस हैं ताकि जिनको और हाई लेवल पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर लेवल दे कैन जॉइन द क्लासेस. एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच अप्रोचेबल एट टेलीग्राम. जब भी मैसेज करते हैं वी I reply to them, and whatever new learning ways are there, I try to teach with them. And we also have an habit of making mnemonics. As you also know, mnemonics is the best way of learning. You make a mnemonic, you'll remember that for a longer period of time. And I tell how to make short notes so that you can revise it easily. So I teach biology, and I tell them to study smart, and that's all. Hard work is the key. Rinse, repeat, and again rinse, repeat. Study hard. Thank you, ma'am. Let's India will awake to life and freedom. Let's crack it.